ہم نے 3 دن پہلے بلکہ 4 دن پہلے رزلٹ کی میں نے پریڈکشن کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکیوں نے ابھی تک ایک خاتون کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کو لیڈ کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بینا گوئندی۔ آج آپ کو پتا ہے کہ آج 9 تاریخ ہے اور اس وقت 9 نومبر 2024 اور میں ہوں واشنگٹن امریکہ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 3 دن پہلے بلکہ 4 دن پہلے رزلٹ کی میں نے پریڈکشن کی تھی، اور اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو امریکی الیکشن ہے اس کے صدارتی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں جیت کس کی ہوگی، تو وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کمیلا ہیرس نے بھی اپنے طور پر کوشش کی۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ہماری جو بات ہم کر رہے تھے وہ تو پوری ہو گئی، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر کے انتخاب جیت چکے ہیں۔ اب گویا اگلے 4 سالوں کے لیے جنوری میں وہ اپنا اس کا لیں گے حلف، اور اس کے بعد یہ وائٹ ہاؤس میں آ کر بیٹھیں گے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جیتے کیسے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، چونکہ ہمیں جو آثار نظر آ رہے تھے وہ ان کی گزشتہ جو ان کی کارکردگی تھی اس کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس کے اوپر بہت کرٹیسائز انہیں کیا گیا، اور یہ بھی درست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، لیکن یقین مانیں کہ انپریڈکٹیبل اور کریزی لوگ بعض دفعہ بہت سے کام کر جاتے ہیں جو ان کی ڈائریکشن صحیح ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن کو بنا کر اپنے ایجنڈا کے اوپر کام کرتے ہیں، جو ان کو دوبارہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ سارے پوائنٹس کو ہم 1 بائی 1 لے کے چلتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے، اور لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ آپ یہ چیز دیکھیں اور یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے، کس طریقے سے اپنے وطن یعنی کہ امریکہ کو تحفظ دینے کے لیے اور امریکن اکانومی کو لینے کے لیے کس طریقے سے بات کی۔ امریکی الیکشن کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو 2 مرتبہ خواتین جو تھیں صدارتی الیکشن کے لیے کھڑی ہوئیں، اور دونوں مرتبہ ان کے مد مقابل ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہے۔ 2016 میں اگر ہلری کلنٹن ان کے مد مقابل تھیں تو وہ پاپولر ووٹ زیادہ لیتے ہوئے بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب جیت لیا، اور وہ امریکہ کے 2016 میں صدر منتخب ہوئے۔ اب دوسری مرتبہ ابھی کمیلا ہیرس وہ ان کے مقابل ڈونلڈ ٹرمپ رہے، لیکن کیسا ہوا کہ انہوں نے سویپ جیت، یعنی کہ ایک اتنی بڑی کامیابی اور شاندار کامیابی کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی الیکشن جیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں مرتبہ خواتین کی پریزیڈنٹ نہ بننے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، ہم اس کے اوپر بھی غور کریں گے، اور ٹرمپ کا اس طریقے سے غیر معمولی طور پر جیت جانے کو بھی ہم اس کی وجوہات کو غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو دونوں مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آ کر ہار کو کیوں ان کو منہ دیکھنا پڑا۔ جینڈر بیریئر از ناٹ بروکن یٹ، یہ تو آج سب بات کر رہے ہیں، لیکن آج ہم ان کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ ظاہر ہے اس کی ایک مین وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس میں رہتے ہوئے اس وقت امریکی عوام کو اپنے مسائل اور وہ مسائل جو ان کے اندرونی مسائل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنگ ہے اس کا ایک الگ حل نکل آئے گا، لیکن سب سے زیادہ انہیں کنسرن ہے اپنی اکانومی پہ۔ آج کے جو الیکشن ہوئے، جو اگر ہم ان کو یوں دیکھیں کہ اس کا اگر اربن ایریاز جو لارج نمبر ہے، جیسے کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے، یا نارتھ ایسٹ کے جتنے علاقے ہیں وہ ڈیموکریٹس کی طرف جاتے ہیں یعنی آبادی کو، لیکن اگر ہم
हम बाकी जितना सेंट्रल हमारा अमेरिका की आबादियां हैं उन सब में क्या आता है, वो आम आदमी के लिए, सबके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है। और ये इलेक्शन का जो रिज़ल्ट निकला है वो यही है कि अमेरिका की इकोनॉमी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। सबसे ज़रूरी यही था, ये है कि उनको अपने हालत को सही रखना है, और उसके ऊपर उन्हें यकीन था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसके लिए एक बेहतर हल निकाल सकते हैं, जबकि डेमोक्रेट जिसको एक आम आदमी स्टेटस को की पार्टी कहकर बुलाते हैं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, और वो इसके लिए कहते हैं कि इनके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं है और इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया हो, जबकि डोनाल्ड ट्रंप से उनके इस चीज़ की तवक्को है। दूसरा, अगर हम पहलू पे बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में एक सबसे पहले अगर मीडिया ने जो हम अगर देखते हैं, अगर जनरली हम देखें कि हमारा एकेडेमिया सिविल्स तरफ अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें कि अमेरिका की इंटेलिजेंशिया, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटीज़ और मीडिया ग्रुप सवाए फॉक्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा ये बाकी मानदार जितने भी हैं उनका स्लांट टुवर्ड्स यानी कि डेमोक्रेट्स की तरफ है, यानी कि वो जो हैं वो प्रो लिबरल हैं। जब हम प्रो लिबरल कहते हैं तो वो उनमें सारे ये जितने भी हमारे CNN, CBS और जितने भी वाशिंगटन पोस्ट, LA पोस्ट और जितने भी ये हमारे सहाफ़ती अदारे हैं, इनका लिबरल होने का, प्रो लिबरल होने का इनके हमें नज़र आते हैं, इनके तमाम इजहार। ये तो उसी की बुनियाद पर ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गैर मकबूल हो चुके हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो वो बिल्कुल ही उलट थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा साबित है और एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास कि किस तरीके से अवाम ने अपना वोट दिया और उन्होंने साबित किया कि किस तरीके से जो सबसे बड़ी ताकत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो अवाम की ताकत है। और अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, ध्यान रहे कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए इनको उस तरीके से हम जज ना करें तो बेहतर है। और दूसरी बात, जो एक और बात, एक अहम जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में जिनको सबसे बड़ी बात रही वो है कि उन्होंने वादा किया कि मैं अमन लेकर आऊँगा, और जब अवाम उसके साथ खड़े हो गए और इसीलिए आज हमारे 47 जो प्रेसिडेंट अमेरिका के बनने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को इनका इंतखाब किया गया। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें इनके हारने की, तो उसका तो एक ही मेरे सामने वजह नज़र आती है कि दे वर वेरी मच नॉन सीरियस, यानी कि डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने कोई एजेंडा नहीं लेके आए, और जो उन्होंने हुकूमत में रहते हुए भी उन्होंने दुनिया में जंग और को ख़त्म करने के लिए कुछ ना किया, बल्कि जंगों को उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए और उनको ज़्यादा आग दी कि किस तरीके से अभी तक हमारी हुकूमत ने अपने मामलात को निपटने के लिए और उन मामलात को सही करने के लिए और सही सिमत में लेके जाने के लिए कोई एजेंडा नहीं दे रहे, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने नॉन सीरियस हैं। इसलिए जब आप अपनी जंग लड़ रहे हैं तो आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी डायरेक्शन सही रखिए, आप जो करना चाहते हैं अवाम को उसके साथ गर्ज है। ये तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद अभी तक मुझे एक और बात है जो कि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना और कमेला के हारने में अमेरिका की अवाम के अंदर कदामत पसंदी है, यानी कि वो अभी तक कंजर्वेटिव हैं और कंजर्वेटिवनेस को उन्होंने साबित किया, और ख़वातीन की अभी तक इस लीडरशिप को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। ये नहीं कि उनको दूसरे इदारों तक तो ठीक है, लेकिन एक मुल्क का सदर होने के लिए अभी शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी एक बात है। जबकि दूसरी तरफ कमला हैरिस जो थी, उनका अपनी जितनी कैंपेन उन्होंने चलाई उसमें उनका एक ही प्रोग्राम था उनका, और वो उनका एजेंडा यही नज़र आता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। वो अपना प्लान और अपना एजेंडा नहीं बता रहे थे। इन सारी बातों से हमें क्या समझ आया? हमें यही समझ आया कि जब आपने कोई भी अपना मकसद हासिल करना है तो उसके लिए आप
आप अपनी इनपुट दीजिए, ये ना कहिए कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि जब तक आपकी अपनी इनपुट नहीं होगी तो लोगों को आपका काम नजर नहीं आएगा। तो गोया मैं ये समझती हूँ कि कमेला की पर्सनैलिटी इतनी, या कमेला का काम जो था वो एक एज अ एम्पावर्ड वुमेन तो ज़रूर हैं यकीनन, लेकिन वो अभी सदारती इंतखाब के लिए मुंतखब नहीं हुई। ये तो हमारा एक रहा। आज हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि ये कदामत पसंद, तरक्की पसंद, यानी ये कौम अमेरिकन जो हैं ये जितने तरक्की पसंद हैं उतने कदामत पसंद भी हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अमरीकियों ने अभी तक एक खातून को इस काबिल नहीं समझा कि वो इसको लीड कर सकें। शी इज वीक टू लीड, ये भी ये कहते सुना गया है कि खवातीन जो हैं वो फैसला नहीं कर सकती, खवातीन जो हैं वो जज्बाती होती हैं, और खवातीन जो हैं वो कैसे मुल्कों के फैसले करेंगी। तो ये अभी तक अमरीकी कौम जो है वो बहुत कदामत पसंद है। और आपने ये भी देखा कि एक और इसकी बात है, अगर कदामत पसंदी की हम बात करें तो उन्होंने एबॉर्शन जैसे, जिसको कि कमेला ने अपनी कैंपेन का एक मेन फैक्टर बनाया, मेन जुज बनाया, उसमें उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने गे मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने ये तमाम एलजीबीटीज जैसे तमाम अनासिर को और इन तमाम मामलात को उन्होंने रिजेक्ट किया। इसलिए चूंकि अगर हम अमेरिकन को देखें तो वो किसी हद तक कदामत पसंद भी हैं बहुत से हवालों में। अंदर से वाकई यकीनन दुनिया इस वक्त बदल रही है, करवट ले रही है, लेकिन अमरीकी अंदर से अभी भी कदामत पसंद है। उम्मीद है कि आपने आज के हमारे ये इलेक्शन 2024 अमरीकी सदर के इंतखाब के आज का हमारा प्रोग्राम और इसके तज्जिया पसंद आया होगा, और इसके में अपनी राय आपके हमारे लिए बहुत अहम है। प्लीज़ वो हमारे लिए अपने कमेंट्स दें, क्योंकि वो ही हमारी हमें राह की तयन करेंगे, और हम समझेंगे कि आप क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात सुनना चाहते हैं, और किस तरह आप सोचते हैं। क्या हम हमारे से मुत्तफिक हैं भी नहीं, इसके बारे में भी कमेंट्स दीजिए। तो इसके साथ आप हमें इजाजत दीजिए। आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।